Okay, okay, okay. Okay, and now we are live on YouTube and we've started recording also. So now I think Meenakshi, you can start. Hello, Meenakshi, can you hear me? Yes, ma'am. Hi, Shall you I can start? start. Yeah, you can start. Meenakshi, am I audible? Yes, Yes. yes, Bachchi ma'am. You Okay, are. okay. A a very pleasant good morning, dear students and co-conveners, Dr. Nandashri madam and Dr. Nihal Sheikh sir. Your With the voice is cracking, I think. है ना ma'am, Shubhashri? Little bit. A little bit. Meenakshi. Mhm. okay. Is it now, ma'am, clear? Yes, now it's clear. Yes. Yeah, Okay. better. Yeah. A very pleasant good morning to dear students, teachers, my co-conveners, Dr. Manjushri madam and Dr. Nihal Sheikh sir. With a positive note and assurance that the quality of learning will not suffer and virtual classes will keep you excited and busy despite the challenging COVID 19 pandemic. With this aim, I, Dr. Meenakshi Vasnik, welcome you all to the online course of BCom Semester 2 Compulsory English organized by R.S. Kundle Dharampet Arts and Commerce College, Santaji Mahavidyalaya, and Manohar Rao Kamdi Mahavidyalaya, Nagpur. Today we have an eminent academician and a very scholarly personality, Dr. Shubhashri Mukherjee Madam, with us. Dr. Shubhashri Mukherjee is a professor, IQAC coordinator, head International Collaboration Training and Placement Division, Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur. Madam has a vast exposure in her academic field, not only in India, but also across the country. This is evident from her international collaborations as a member of Curriculum Designing Committee of International Postgraduate Diploma in Quality Assurance in Asia Pacific Quality Network, Shanghai, China. Another international hit in her academic career is displayed through her role as a certified examiner for University of Cambridge, London, UK. Madam is a member of Center for Literary Interaction and Creativity and Shakespearean Society. She has delivered talks on several national conferences on NAC. She is a member of editorial board of several national and international journals of repute. She has to her credit several research publications in national and international journals, books, and seminar proceedings. With due respect, I request Dr. Shubhashri Madam to guide our students with her enthralling lecture on the topic assigned from grammar section, articles and preposition. Over to Shubhashri Madam. Thank you so much, Meenakshi, for your sweet words Thank you, ma'am. while introducing me. So, before I begin with the presentation, I would like to thank the organizers, the major role being played by the three institutes, namely R.S. Mundle Dharampet Arts and Commerce College, Santaji Mahavidyalaya, Manohar Rao Kamri Mahavidyalaya, the principals of these colleges, the management. It seems very simple, dear students, that every day at the same time, these lectures are being telecasted live on YouTube. But trust me, there are painstaking efforts behind all these programs. And to bring things at your doorstep with the technological constraints that is there is really a tough task. And hats off to the organizers for conducting the event very smoothly. Uh, the topic entrusted is quite dry, and grammar as such is not a thing which is much enjoyed by the students. I'll try my best to make it interesting and informative, majorly because it's a YouTube telecast, so I cannot be interactive, which I mostly prefer. So I hope that you will be able to understand. I've been told by the organizers to be bilingual.
so that the students are able to follow. We have students from different backgrounds, from different vernacular mediums who have joined this session. So directly I'll be sharing my screen with you. And Meenakshi, you'll just tell me whether it's visible or not. Yeah. Yeah, ma'am, it is Okay. visible. Okay, thank you. Kindly zoom it, ma'am. Yeah. Just I'm in the process. Okay, so hope it's clear. Yeah, very clear, ma'am. Yeah. So these are the two topics that I'll be covering. I hope I'll be able to do justice with the time frame that I have been allotted. So we'll start with articles. No specific reason for that, just alphabetically it came in the beginning. So I thought let's start with articles. So basically, I won't go into much detail regarding the backgrounds of these things, from where these words originated and all, because that is of not much use for you students. So two types of articles: definite article and indefinite article. Under definite articles, we have the and indefinite article a and an. Now, we have to understand when these articles are used primarily, because that is the key. So, when to use when we are talking about one thing in particular, about one thing specifically, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम बोलते हैं, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम श्योर हैं, एक फिक्स चीज के बारे में ही हम बोल रहे हैं, या एक निश्चित वस्तु के बारे में ही हम बोल रहे हैं, तब हम द का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया। द कैपिटल, हम कैपिटल शहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मालूम है हम निश्चित उसी शहर के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ की राजधानी है। हैव यू सीन द कार कीज, मतलब एक निश्चित कार की चाबी के बारे में ही हम बता रहे हैं, किसी भी कार की चाबी के बारे में नहीं, हमारी कार की चाबी के बारे में बोल रहे हैं। दैट इज वेयर वी यूज द वर्ड द। आई ओपनड द विंडोज, खिड़कियां मैंने खोली, एक निश्चित खिड़की ही मैंने खोली जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। आई सॉ द नेबर एट द सुपरमार्केट, मैंने सुपरमार्केट में पड़ोसी को देखा, तो उस पड़ोसी के बारे में, न्यू पड़ोसी, जो नया पड़ोसी आया है, उसको मैंने देखा। ये एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा, ये द का सिंपल यूज, डिटेल्ड यूज और हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा ए और एन का भी एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। When we are talking about one thing in general, another thing I will tell you here is that it is usually used before countable nouns. Countable nouns जिनको हम गिन सकते हैं, जो चीजें, जो संज्ञा हम गिन सकते हैं, उनके सामने ये यूज होता है ए या फिर एन। अब ए कहाँ या एन कहाँ, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और एन दोनों का यूज मैंने यहाँ पे बताया है। टीना वॉज बोर्न इन अ टाउन इन जापान, जब हम ये बोलते हैं तब हम, टीना एक शहर में, जापान के एक शहर में उसका जन्म हुआ था, किस शहर में निश्चित नहीं है, कोई भी शहर हो सकता है, हमने सिर्फ ये कहा है कि जापान के एक शहर में, तो ये अनिश्चित है। जैसे आपको शुरू में ही मैंने बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, तो निश्चित यहाँ जगह का नाम जब हमें नहीं मालूम है पक्का, तब हम ये आर्टिकल यूज कर रहे हैं। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो एक मूवी देखें। कौन सी मूवी, अगेन अनिश्चित है, यहाँ पे अनश्योर है। पर्टिकुलर एक मूवी फिक्स्ड हमने नहीं डिसाइड करी है। Yesterday I met an American, एक अमेरिकन से मैं कल मिली। कौन से अमेरिकन है, अगेन यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो एक अमेरिकन से मेरी मुलाकात हुई। I had an egg for breakfast, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में मैंने एक अंडा खाया। Okay, so this is an overview as to where a and an are to be used. Now we'll take a into consideration, the indefinite article a.
तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि when the word starts with a consonant, स्वर और व्यंजन आपको पता होंगे। अगर यहाँ मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो कॉन्सोनेंट जो है उसके सामने ए का जो है हम शब्द यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स, और सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है फर्स्ट लेटर को, गर्ल स्टार्टिंग विद जी, अ गर्ल, देन अ बस, ये भी काउंटेबल है। काउंटेबल आई टोल्ड यू, गिन सकते हैं। लड़कियां हो तो हम गिन सकते हैं, बस गिन सकते हैं कितने बसेस है, फ्रॉक, टेबल, हम ये चीजें गिन सकते हैं। तो अ जब अनिश्चित किसी गर्ल के बारे में हम बोल रहे हैं, अनिश्चित किसी बस के बारे में बोल रहे हैं, अनिश्चित फ्रॉक और अनिश्चित टेबल, ऐसे अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति या फिर एक, वन इन नंबर, तो तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। दो तीन चीजें यहाँ याद रखनी है। एक कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो याद रखने हैं, दूसरा याद रखना है आपको कि इट शुड बी काउंटेबल नाउन। सेकेंड थिंग फॉर ए इज कि when it is starting with a vowel maybe, but then the sound which is being produced is different, is like a consonant, like U, for example, like we say university. The normal sound for a word starting with U is A. I always tell my students, even while teaching in my regular lectures, that phonetically alphabets are not taught in state board schools. So this is an added advantage in CBSE schools, wherein the alphabets are taught to the child going to KG, KG1 or nursery, in whichever class it is introduced, it is taught phonetically, like A, B, B, C, K, D, D, E, A, F, G, G, H, H. This is how it is taught in CBSE schools mostly. So this is a drawback. We can say that it is not taught phonetically to the students of state board. I have asked many students of different batches, but unfortunately everybody has given a negative reply regarding this. So the phonetic sounds are much clear to these students who learn the alphabets phonetically. So while university, we pronounce any word with U, the normal pronunciation of U is A, like we say under, understand. Okay, so it is A, but in case of university, it is U. So when we are getting this consonant sound of year का जो sound आ रहा है, year जो है ये vowel sound नहीं है, तो we will use A. So a university when we do not name the university, or when we are specifically not talking about a university in particular. Again, the word European, again, though it is starting with the alphabet E, there is a confusion amongst many students, because you have been told that before every vowel you have to put an. But university is beginning with a vowel, but you're not putting an. Why? Because we have to check not the vowel, not the spelling, we have to check the sound. So the vowel sound is important, because we are getting y sound while pronouncing university, European, or unit for that matter. So we will be using A if we are using the indefinite article, when we are not sure, when we are not talking about one particular university. But if we say about the Nagpur University, for example, so we'll say the university offers courses in BA, BCom, BSc. But if we say there is a university in Nagpur, so we don't know which university they are talking about, so then we will use a university. So this is the difference between the two. Now, continuing with the word an, the article an, where we use it. So it is used to when, just keep a note on this, make a note of this, vowel sound and not the vowel. Because if it would have been just the vowel, then you would have put here. So here you are taking the vowel sound into consideration. So example, we'll say an elephant, an apple, an egg, an orange,
these words, they not only start with a vowel, but they start with a vowel sound. So we will be using an. These are countable nouns having a vowel sound. When we want to single out any indefinite elephant, जब अकेले किसी elephant, अनिश्चित किसी हाथी, किसी सेब, किसी अंडे या किसी ऑरेंज के बारे में बोलेंगे हम, तो अनिश्चित है जब हम किसी पर्टिकुलर एप्पल के बारे में नहीं बोल रहे, किसी पर्टिकुलर एलिफेंट के बारे में नहीं बोल रहे, तो वी विल यूज एन. नाउ there is another situation wherein the words starting with H are there, but this H is muted. H जो है pronounce नहीं किया जाता है, silent होता है H. ऐसे words भी हैं, तो वहां पे क्योंकि our हम बोल रहे हैं, honor हम बोल रहे हैं, honest है, कई examples हैं, मैंने एक दो ही लिए हैं. तो there what we do, because H sound नहीं करना है हमें, H को pronounce नहीं करना है हमें, हम our बोल रहे हैं. our मतलब ऐसा लग रहा है कि it's starting with O, so that is why we have to use an. An hour, जब 1 घंटे के बारे में हम बोलेंगे, an honor, it's an honor to be here, so we will use an in that case, though the spelling is H. So that is why I told you it's important, very important, which most of the students who come to degree college do not know, that it is important to make a note of the vowel sound and not the vowel spelling, because इसमें तो spelling में नहीं आ रहा है, जैसे आपको university unit ऐसे words मैंने दिखाए, तो sound पे जो है वो ध्यान देना है, कौन सा sound आ रहा है, स्वर का या व्यंजन का. Now, another example of indefinite article is use indefinite articles to refer to something for the first time. अनिश्चित है कोई चीज, पहली बार हम उसके बारे में बता रहे हैं, फिक्स्ड नहीं है, पर्टिकुलर कोई चीज के बारे में नहीं बोल रहे हैं. एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, क्या आप एक ड्रिंक लेंगे? तो कोई भी ड्रिंक हो सकता है, वो एक शरबत हो सकती है, वो एक कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, ओके, वो एक फ्रूट जूस हो सकता है. तो ये अनिश्चित है, ठीक है. अगर कोई बोल देता है, समझ लीजिए कि ओके पेप्सी या कोक, तो उसके बाद फिर जब हम अगली बार उनसे पूछेंगे कि देने सर्व करने से पहले शुड आई सर्व द ड्रिंक, तब द हो जाएगा. लेकिन जब उसको जनरल पूछ रहे हैं हम कि कोई आप ड्रिंक लेंगे क्या, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, मतलब हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं, वो कोई भी ड्रिंक बोल सकता है, यहाँ पे फ्रूट जूस, एनी सॉफ्ट ड्रिंक लाइक पेप्सी, कोक वगैरह, ओके, या फिर नींबू पानी, कुछ भी हो सकता है. तो व्हेन वी आर नॉट मेंशनिंग पर्टिकुलरली अबाउट अ ड्रिंक, एक ड्रिंक के बारे में स्पेसिफिकली जब हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, पहली बार हम मेंशन कर रहे हैं, तो अ, और जब इसके बारे में चर्चा हो जाती है, ये फिक्स हो जाता है, उसके बाद जब इसके बारे में हम बताएंगे, उस ड्रिंक के बारे में जब हम बोलेंगे, तब द. शुड आई सर्व यू द ड्रिंक, मतलब वो ड्रिंक जिसके बारे में आप ऑलरेडी बोल चुके हो, रेडी है वो, क्या उसको हम सर्व करें. ओके, दिस इज द वे. आई हैव फाइनली गॉट अ जॉब, फाइनली मुझे नौकरी मिल गई है. कौन सी नौकरी नहीं पता, ठीक है. अगर इसके बारे में पहले आपसे किसी से चर्चा हुई है कि वो नौकरी जिसके लिए आपने अप्लाई किया था 15 तारीख को, हाँ वो, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम उससे मिलते हैं तो आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू ज्वाइन द जॉब. कौन सा? अच्छा, वही वाला द जॉब, मतलब वो जॉब जिसके बारे में हमने 15 तारीख को अप्लाई किया था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो देन दैट बिकम्स अ फिक्स्ड, अ पर्टिकुलर, अ स्पेसिफिक थिंग, सो देन वी कैन यूज द आर्टिकल द. तो द दोनों में आपको साइमल्टेनियसली इसलिए बता रही हूँ कि दैट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अ क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ व्हेन and when the. So please keep these points in mind. Now again, the indefinite article, if we are talking about a particular member of a group, एक group जैसे डॉक्टर्स है, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप के किसी व्यक्ति के बारे में हम इस तरह से बोलेंगे, जैसे राहुल इज अ डॉक्टर, she wants to be a dancer, she aspires to become an engineer. तो ये जैसे हम राहुल इज अ डॉक्टर बोल रहे हैं, तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ
डॉक्टर्स, तो तब उनका नाम उन लेने के लिए इस ढंग से हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ रिगार्डिंग द, अगेन उसका कुछ यूज कि इफ इट इज एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली स्पेसिफाइड, पहले कहीं उसके बारे में अगर बताया गया है, जनरली अगर प्लीज क्लोज द डोर बोलेंगे तो द पर्सन विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सा दरवाजा, एक रूम में समझ लीजिए अगर फर्ज कीजिए कि 2 दरवाजे हैं तो कौन सा, तो जरूर या फिर एक ही दरवाजा है तो क्लोज द डोर, या फिर उस दरवाजे के बारे, अरे वो दरवाजा बहुत आवाज कर रहा है उसको बंद करना, तब प्लीज क्लोज द डोर, 2 है अगर तो उसके बारे में कुछ बात ऑलरेडी अगर हो चुकी है तो वो फिक्स्ड हमको पता है कि हम उसी दरवाजे के बारे में बोल रहे हैं, तब जाके द शब्द जो है वो यूज होगा। सेकेंडली, आई लाइक द बैग यू गेव मी, मुझे आपने जो बैग दिया वो मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक द बैग यू गेव मी। तो यही चीज अगेन अगर आप विचार करें कि ये इंडेफिनिट कब हो सकता है, आई लाइक अ बैग, कौन सा बैग, फिर पता नहीं कौन सा बैग, एक स्कूल बैग हो सकता है, आपका कॉलेज बैग हो सकता है, आपका जो बैग आप पार्टी में लेके जाने वाले हो वो हो सकता है, आप में भी मार्केट जा रहे हो सब्जी लेने के लिए तो वो बैग हो सकता है, तो यू डोंट नो देन, तो आई हैव अ बैग, कौन सा बैग फिर मालूम नहीं, तब अ यूज होगा। और द कब यूज होगा, जब हमें मालूम है कि हम निश्चित रूप से उसी बैग के बारे में बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन दिस केस आई लाइक द बैग यू गिव मी द व्हाइट बैग हो सकता है, गिव मी द ब्लैक बैग, गिव मी द कॉटन बैग, तो वो पर्टिकुलर हम उस समय उस बैग के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम तभी द का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस केस आपने जो बैग दिया वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो ये जो है दिस इज द डिफरेंस कि कब हम किस कॉन्टेक्स्ट में हम अ बैग यूज करेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में हम द बैग यूज करेंगे। अगेन द का कुछ फिक्स्ड और चीजें हैं, जैसे कोई चीज जो यूनिक है, एक में वह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर एक ही है ऐसा माना जाता है, हालांकि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता वगैरह वगैरह, लेकिन ईश्वर एक है माना जाता है, इसलिए द लॉर्ड बोलते हैं हम। द ताजमहल एकमेव अपनी तरह का एकमेव मॉन्यूमेंट ताजमहल, कई ताजमहल नहीं है दुनिया में, तो द ताजमहल हम बोलते हैं। दी आईफिल टावर इज इन पेरिस हम बोलेंगे, अगर हम आईफिल टावर, अगेन बहुत सारे आईफिल टावर नहीं है, तो इस तरह से हम यूनिक चीजों के मामले में जब हम बोलेंगे, उनके बारे में जब हम बोलेंगे, तो वी विल बी यूजिंग द वर्ड द। ओके, तो स्पेसिफिकली एक रफ आइडिया, एक हाफ एन आवर का टाइम अगर पर एवरेज पड़े, थोड़ा सा प्रेपोजिशंस पे मैं फोकस ज्यादा करूंगी, क्योंकि आर्टिकल्स ठीक है, आप लोग दोनों चीजें जो हैं, आई नो दैट यू हैव बीन स्टडिंग सिंस योर स्कूल days, but then there were certain things which you need to unlearn as far as articles were concerned, and majorly जो वाउल के सामने लगता है वाली चीज है, वो वाउल साउंड के सामने लगता है, ये स्पेसिफिकली मुझे बताना था, तो दैट आई हैव एम्फसाइज्ड and hope you have understood कि where these and comparatively I have stated it always, तो अ कहाँ द कहाँ, ये जनरली एक सम अप करने के लिए मैं ये बता दूं आर्टिकल्स का सेक्शन स्पेसिफिकली, बिकॉज आई रिक्वायर लिटिल मोर टाइम फॉर prepositions, बिकॉज उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, देन कॉमनली जब हम बात करते हैं तो उसमें गलतियां बहुत लोग जो हैं prepositions में करते हैं, तो आपका लैंग्वेज काफी सारा इम्प्रूव हो सकता है अगर आप सही prepositions यूज करें, तो आई टेक लिटिल मोर, जस्ट 5 minutes more time for prepositions as compared to articles. So articles summing up, जो बिफोर काउंटेबल नाउन्स एन लगेगा, एन में डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, on the basis of the vowel sound, you will see the sound that is being made while pronouncing the word, so correct pronunciation again becomes very important, it becomes the key, because अगर आप जो है गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो आप गलत जो है उसके सामने आर्टिकल लगा दोगे, ए के जगह एन लगा दोगे या एन के जगह ए लगा दोगे, अगर आप यूनिवर्सिटी बोलते हो यूनिवर्सिटी को तो अ साउंड आ रहा है तो फिर आप एन लगा दोगे,
but then an is not correct, a university is the correct word. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए ए और एन के लिए, and more specifically the vowel sound is important. Regarding the specific चीज जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले से तय है, निश्चित है, फिक्स है, उसके लिए हम the का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू prepositions डायरेक्टली, अगेन बहुत ज्यादा मैं कभी भी definitions और rules और ये और वो मैं कभी नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैं बिलीव करती हूँ. तो prepositions में भी डायरेक्टली विल कम कि कहाँ वो यूज होता है preposition. तो दो चीजों के बीच में जब रिलेशनशिप हमें बतानी है, टू शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स. जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस, बुक और टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप बता रहे हैं. क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं? कि बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है. ये हम रिलेशन, दोनों में ये रिलेशन है, द बुक इज ऑन द टेबल. दूसरा सेंटेंस देखिए, द कैट इज अंडर द चेयर. कैट कहाँ है? चेयर के नीचे है. तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि कैट चेयर के नीचे है. तो दिस इज द वर्ड. आई हैव अंडरलाइंड द prepositions इन बोथ द केसेस. ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए सबसे पहले ये मैंने रखा है कि दो चीजों के बीच में रिलेशन. यहाँ पे पहले सेंटेंस में बुक और टेबल के बीच में कि ऑन, और दूसरे सेंटेंस में चेयर और कैट के बीच में कि अंडर है. तो ये एक चीज हमने देखी. थोड़ा सा ब्रीफली मैंने लिया है, सारे एग्जाम्पल्स इसमें नहीं आए हैं, कुछ ही लिए हैं. ऑब्वियसली स्लाइड्स पूरे बहुत भर भर के और दिमाग में कम जाएं, ऐसा नहीं. दिमाग में ज्यादा जाना चाहिए, स्लाइड्स में कम रहना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. तो सिंपल prepositions जो है वो एड, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, सिंगल ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ, आउट, थ्रू, टिल, टू. कॉम्पाउंड में आपके सामने है. कुछ जो है इनके जहां कंफ्यूजन वाले यूसेजेस हैं उस पे मैंने आगे आने वाले स्लाइड्स में फोकस किया है. ये सब कॉमन है, बहुत अनकॉमन वाले कोई नहीं लिए हैं. तो एट का स्पेसिफिक यूज कहाँ है, ज्यादा किस प्रकार से है, बाय का कहाँ है, फॉर का कहाँ है, फ्रॉम का कहाँ है, ये सब आपको पहले मैं सिंपल prepositions का कॉमनली एकदम बता देती हूँ. आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए. एट यूजुअली एक टाइम के लिए बोला जाता है. एट का बहुत डिटेल में मैंने पीछे 2 स्लाइड्स लिए हैं, अभी एट इसलिए नहीं बताती हूँ आपको. By is used in 2 senses. I have to be little bit fast because time frame थोड़ा सा मुझे ध्यान रख के चलना पड़ेगा. तो by के जो 2 तरह के यूज हैं, वो एक है कि this book was written by XYZ, कि इसके द्वारा, एक ये है द्वारा वाला by. दूसरा एक by है, जो पहला ये by जो है ज्यादा पैसिव वॉइस में यूज होता है. दूसरा जो by है वो है कि टाइम बताने के लिए यूज होता है कि आई विल रीच बाय 5 PM, यानी लगभग. आई विल रीच एट 5 PM अगर आप बोलते हो तो बहुत ही स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो कि 5 ही बजे आप पहुंच जाओगे, पर 5 बजे लगभग 1 आध मिनट इधर उधर होगा. अगर आप इस ढंग से बोलना चाह रहे हो तो आप तब फिर बोलोगे आई विल रीच बाय 5 PM. ओके, ये बाय का इस्तेमाल हो गया. फॉर के लिए, this is for you, this gift is for you, these roses are for you. के लिए. from me to you. okay, ये from का यूज, मेरे तरफ से, from me, from my side. ये in usually it is used जो उन जगहों के को डिस्क्राइब करने के लिए, आगे भी इसका थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जो आप एंटर कर सो. सीधी बात, बिल्कुल मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर, दिमाग में घुसनी चाहिए बात, ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा ग्रामेटिकल हाई-फाई एग्जांपल्स मैं कभी नहीं देती हूँ. तो इन मतलब या कोई वस्तु उस चीज के अंदर घुस सके, जैसे बॉक्स, कीप दिस इन द बॉक्स, तो वस्तु अंदर जा सकती है. इन, ही इज इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर आप घुस सकते हो. इन द हॉल, हॉल में घुस सकते हो. इन द रूम, रूम में घुस सकते हो. इन. रही बात ऑफ की, तो ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है. ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, कुत्ते से उसको डर लगता है.
ओके, तो ये सेंस में ऑफ सिंगल एफ वाला. डबल एफ वाला स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, गेट ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर कोई बैठा है, उतरो वहां से, हटो, इस सेंस में ऑफ डबल एफ वाला. आउट बाहर, जस्ट इनका ऑपोजिट. थ्रू इज पूरा आर पार. थ्रू जो है वो पूरा आर पार. जैसे यहाँ पे एक और वर्ड है जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको. स्लाइट डिफरेंस है इनटू और थ्रू में. बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जिन वर्ड्स पे. अभी इतना जो मैडम ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इतना 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये वो, तो एक्सपीरियंस टीचर्स आपको हमेशा ये बता पाएंगे वो चीजें जहां बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं. तो नॉर्मली इसमें बहुत गलती करते हैं कि इनटू और थ्रू में क्या फर्क है. इनटू इज जैसे इंजेक्शन आप लेते हो, अभी वैक्सीन का बहुत चल रहा है, कोरोना इज ऑन इट्स पीक, तो फिर इंजेक्शन आप लेते हो तो इट इज गोइंग इनटू योर, अंदर जा रहा है. तो एनीथिंग विच गोज इनसाइड विथ मोशन, कहीं ना कहीं मोशन, इसको डिटेल में बाद में और स्लाइड में मैंने लिया है. लेकिन इनटू एक है, थ्रू मतलब आर पार. आप बोलेंगे द बुलेट वेंट इनटू द बॉडी, अगर वो सोल्जर के बॉडी में जाके अंदर वो बुलेट रह गया है. ध्यान दीजिए, अगर बुलेट जाके अंदर रह गया है तो द बुलेट वेंट इनटू द बॉडी. लेकिन अगर बुलेट हाथ के अंदर घुस के उधर से पीछे साइड से निकल गया है तो थ्रू बोलेंगे. देन यू विल यूज थ्रू. द बुलेट पास थ्रू द बॉडी. ओके. सिमिलरली टिल जो है ये तक, तक के लिए तक. आई विल स्लीप टिल 7 AM. ओके, तक, 7 बजे तक मैं सोऊंगी. टू, अप टू अ सर्टेन पॉइंट, जैसे फ्रॉम मुंबई टू गोवा, फ्रॉम नागपुर टू पुणे, इस तरह से दो चीजों के लिए. कॉम्पाउंड प्रपोजिशंस जो है अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, ये भी अबाउट हिम, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. अबव मतलब हमारे ऊपर, द रूफ इज अबव आवर हेड. इतने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं, तो मैं स्पॉन्टेनियसली जो एग्जाम्पल्स मुझे याद आते हैं मैं बोलते जाती हूँ. अक्रॉस मीन्स ऐसा आर पार जाना. द स्विमर वेंट अक्रॉस द पूल, मतलब पूल के इस पार से उस पार जाना, दैट इज अक्रॉस. ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, इधर से उधर जाना, एक ऑपोजिट एंड से दूसरे ऑपोजिट एंड तक जाना, दैट इज अक्रॉस. अलोंग मीन्स उसी दिशा में जाना. जैसे द डॉग रैन अलोंग द रोड, रास्ते पर जो है कुत्ता दौड़ के जा रहा है. अमंग मतलब उनके बीच में, घिरे हुए लोगों से. वी आर हैप्पी अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में हम खुश रहते हैं. टुडे वी हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी अमंग अस, हमारे बीच आज. बीच मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली बीच में मतलब दो लोगों के बीच में ये नहीं होता. हमारे बीच मतलब अमंग, इस तरह से हम यूज करते हैं कि वी हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी अमंग अस. जब बोलते हैं तो हमारे बीच एक व्यक्ति है, ऐसे. वहां कभी भी ऑब्वियसली आपको भी पता है कि बीच का मतलब सेंटर या बीच ऐसा नहीं होता है. बिहाइंड पीछे, बिलो नीचे, बिसाइड बाजू में, बिटवीन दो चीजों के बीच में. आई एम सिटिंग बिटवीन माई मॉम एंड डैड, मॉम एंड डैड के बीच में मैं बैठी हूँ. बियॉन्ड उस पार, द नेबर लिव्स बियॉन्ड द हिल, पर्वत के उस पार नेबर रहता है, पड़ोसी हमारा एक थोड़ा दूर है लेकिन रहता है वहां पे. इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर, विद इन विदाउट, अगेन अंदर बाहर. तो ये कुछ कॉम्पाउंड प्रपोजिशंस है. फ्रेज प्रपोजिशंस, अगेन अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो आउट, इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीचिंग फ्रेटर्निटी, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस. ये ऑन बिहाफ ऑफ मतलब सबके पक्ष में, उनके तरफ से हम बोल रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ, मैं बोलती हूँ इन स्पाइट ऑफ being an English teacher, I know there are certain drawbacks in the teaching of English language, है ना, ऐसे. in front of, सामने में. तो ये कुछ टाइप्स हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस हैं. इसमें से कुछ जिसमें ज्यादा गलतियां होती है, मैं उसको स्पेसिफिकली मैंने बाद में लिया है. एक और तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो है लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम के हिसाब से. नाउ लोकेशन जो है वो किस चीज का संकेत दिखाता है? जगह चीज की बताता है या फिर पोजीशन बताता है. जैसे जगह, अंडर द चेयर, अगर हमने पहला सेंटेंस देखा, ऑन द टेबल,
जो पहले स्लाइड में देखा, इन फ्रंट ऑफ ये भी जगह बता रहा है, अमंग लोगों के बीच में ये भी जगह बता रहा है, बिटवीन ये भी जगह बता रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन के तौर पे क्लासिफिकेशन। डायरेक्शन दिशा, टू एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक निर्धारित पॉइंट है और उस पॉइंट से टू एंड फ्रॉम, ओके। दूसरा इनटू, एक यहाँ पे लिया है, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस, ये सब दिशा बता रहे हैं हमें। देन टाइम, कब वो चीज हुई है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ड्यूरिंग, पहले हुई है, आफ्टर बाद में, सिंस पहले से जो शुरू हुई है, अभी भी चालू है, वो उसके लिए सिंस। सिंस 2010 आई नो हिम, मैं उसको 2010 से पहचानती हूँ, मतलब अभी भी पहचानती हूँ, अभी मैं उसको भूल नहीं गई, तो इसके लिए सिंस। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दीज डेज वी शुड नॉट गो आउट ऑफ आवर हाउसेस, इन दिनों हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ड्यूरिंग, इन दिनों। बाय, आपको ऑलरेडी पहले मैंने बताया है टाइम कैसे, बाय आई विल रीच बाय 5 PM, आपको एग्जांपल दिया था। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे हिसाब से, क्योंकि आमतौर पे डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, टाइम के बारे में कई बार हम बोलते हैं, कई बार हम डेट के बारे में बोलते हैं, कई बार दिन के बारे में बोलते हैं, महीने के बारे में बोलते हैं, हम एग्जाम डेट्स बोलते हैं, बर्थडे बोलते हैं, ईयर ऑफ बर्थ बोलते हैं, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल या ईयर ऑफ लीविंग कॉलेज बोलते हैं, टाइम ऑफ द डे के बारे में बोलते हैं, सुबह दोपहर शाम के बारे में बोलते हैं। तो इसमें बहुत गलतियां करते हुए मैंने बच्चों को देखा है। सो दिस इज नॉट अबाउट एनी very deep research. This is about an observation which I have actually noted down and prepared this particular slide. तो ये सारा जो है कहीं ना कहीं समय, मंथ, महीना, दिन, ये सब के बारे में। तो टाइम के बहुत ध्यान दीजिए, ये आपके कॉमन यूज में आपको बहुत काम में आएगा कि टाइम ऑफ डे, कोई भी टाइम आपको बताना है, जैसे आपको बताना है कि आप 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, आई रीच कॉलेज एट 8 AM, जो भी आपका टाइम है कॉलेज का, आई रीच कॉलेज एट AM, इस तरह से एट बताना है, टाइम जब स्पेसिफिक, एट 7, एट 8, एट 8:30, एट 9:30, एट 10:45, कोई भी टाइम बताओ, स्पेसिफिक टाइम अगर आप बता रहे हो तो एट का इस्तेमाल आप करोगे। दूसरा जो है डेट बता रहे हो, आप डेट बता रहे हो, तारीख बता रहे हो किसी चीज की, आपका जन्मदिन बता रहे हो, एग्जाम की डेट बता रहे हो, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए थे, वो कब आए थे बता रहे हो, कोई मर गया उसका डेट बता रहे हो, ऑन 5th में, ऑन 7th में, ऑन 10th में, इस तरह से। दिन बताना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस दिन वो हुआ था, दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन मंडे, this incident happened on Tuesday. दिन जब आप बता रहे हो in terms of day of the week. Next is month. किसी को कोई आपको पूछते कौन से महीने में आप पैदा हुए थे, in the month of June, in the month of July. महीना जब बता रहे हो सिर्फ, अब इसमें कॉम्बिनेशंस भी मैं बताऊंगी, मतलब आपको तारीख भी बतानी है, आपको मंगलवार शनिवार भी बताना है, आपको साल भी बताना है, आपको महीना बताना है, तब कैसे ये सारी चीजों का एक साथ इस्तेमाल कैसे बढ़िया ढंग से आप करोगे, ये आपको मैं बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। नाउ इन द ईयर, आपको सिर्फ महीना पूछते हैं, आप इन में इन जून बोल देते हो, तो इन 2005 I was born in 2004 I was born in 2010, ठीक है। इन द ईयर, व्हेन डिड कोविड स्टार्ट, इन 2020, इन इंडिया इन 2020, ऐसे। अब ये चीज, अब आपको पूरा आपका जन्म का समय, जन्म का वार, जन्म का डेट, जन्म का महीना, जन्म का साल, एक साथ सब बताना है। तो कैसे, ये स्क्रीन आपके सामने है, वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे बताओगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले बोलोगे आई वॉज बोर्न, और डेट बताने के लिए क्या है, ऑन 8th of May, ओके, 8th of May, इन, या फिर ऑन 8th in the month of May, on Saturday at
10 AM in the year 2000 dash dash। एक छूट गया फिर भी, लास्ट वाला जो हमने अभी कवर किया ही नहीं। सुबह दोपहर शाम कब? 10 AM आपने बोल दिया वैसे, लेकिन फिर भी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। दिन का समय बताने के लिए आप हमेशा इन यूज करोगे तीनों के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट 3 parts ऑफ द डे इन, सिर्फ नाइट के लिए एट नाइट। When do you get up? In the morning. When do you rest? In the afternoon. When do you go for a walk? In the evening. When do you sleep? At night. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला समय अलग अलग ढंग से बताने के लिए। जो कॉमनली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। ये देखिए, अब 2 तरह से समय अगर बताना है, एट 6 PM, एट 7:30 PM तो बता दिए, लेकिन 2 तरह से पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, जो 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो है इतने बजे से इतने बजे तक। द लेक्चर इज फ्रॉम 11 AM to 12 noon. The class starts from 8 AM to 9 PM. ऐसे आपको उसको बताना है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों इस तरह से बताना है। अभी एट का मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी एट के बारे में, क्योंकि एट का और इन का जो है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इस स्लाइड में प्लस नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा उसका रेफरेंस मैंने लिया है। तो एट द डोर, एट द गेट, एट द एंट्रेंस, ये देखिए उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर जो है। फॉर प्लेसेस विच आर पॉइंट्स, तो पॉइंट जब एक जगह एक पॉइंट बन जाती है तब एट द डोर एट का इस्तेमाल होता है। एट द गेट, आप कहाँ खड़े? गेट पर खड़े हैं। गेट पर मतलब गेट के ऊपर नहीं खड़े हैं, बट देन गेट जहां है वहीं खड़े हैं। एट द एंट्रेंस, कोई पूछता है वेयर आर यू, आप बोलते हो इन द मॉल। इन द मॉल, ये मॉल बहुत बड़ी जगह है, कहाँ पे? वेयर इन द मॉल, तब आप बोलोगे एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस पे मैं खड़ा हूँ मॉल के, तब वो पॉइंट बनता है मॉल और वो एंट्रेंस बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक और कंपैरेटिव जो मैंने लिखा नहीं, अभी जस्ट बोलते बोलते मुझे मन में आया कि आप नॉर्मली बोलोगे आई लिव इन नागपुर, ठीक है, आई लिव इन नागपुर। बट देन अगर आप नागपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो आई मीन नागपुर रेलवे स्टेशन नहीं बोलोगे, तब नागपुर रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन, तब नागपुर रेलवे स्टेशन पॉइंट। मतलब ये जो है, ये एट शब्द ध्यान दीजिए, ये एट शब्द जो है ये पॉइंट डिनोट करता है। तो नागपुर रेलवे स्टेशन पे भी हो, आप सोच रहे हो कि मैं आई लिव इन नागपुर बोल रहा हूं, तो मैं आई एम इन नागपुर रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बोल? और कुछ हद तक इन मैंने जो बताया है कि अंदर है तो भी है, वो नहीं। उस वक्त नागपुर रेलवे स्टेशन एक पॉइंट बन जाता है। किधर हो आप? किधर हो? मैं नागपुर रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा हूँ आपका। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टॉप, ये पॉइंट्स बन जाते हैं। उस वक्त नागपुर का पॉइंट बन जाता है वो, इसलिए उसके लिए एट यूज करेंगे। दूसरा चीज, फॉर प्लेसेस विच कैन बी एंटर्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इन द ऑडिटोरियम, इन द ऑफिस, इन द सिनेमा हॉल, तो जो चीजें आप एंटर कर सकते हो वहां नॉर्मली आप इन लिखते हो। पर फिर भी आप, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, ऑडिटोरियम में कहाँ हो कोई पूछता है। ये भीड़ देखिए ऑडिटोरियम में कितनी जबरदस्त है। तो ये भीड़ कोरोना के पहले की है ये। तो ये भीड़ जो है ये देख के कोई आपको ढूंढ नहीं पा रहा है, कहाँ हो? आप बोलते हो अरे मैं गेट पर, एट द गेट। इन द ऑडिटोरियम, पहले बोल वेयर आर यू? इन द ऑडिटोरियम। फिर पूछता है अरे बट वेयर इन द ऑडिटोरियम, फिर बोलोगे इन द गेट नहीं, तब बोलोगे एट द गेट। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई। और एक इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप एड्रेस बता रहे हो किसी को, आप जगह बता रहे हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, पहले आप बाहर किसी से मिल रहे हो, विदेश में, आई लिव इन इंडिया। ओ वेयर इन इंडिया, वो पूछता है इन महाराष्ट्र बोलते हो। वेयर इन महाराष्ट्र, इन नागपुर बोलते हो। वेयर इन नागपुर, इन सिविल लाइंस बोलते हो। यहाँ तक ठीक है। अब अगर एक व्यक्ति को एग्जैक्टली आपका एड्रेस बताना है विथ प्लॉट नंबर, तो अगेन प्लॉट नंबर की वजह से आपका घर जो है वो पॉइंट बन जाता है और आप एट का इस्तेमाल करोगे वहां पे। ही आई लिव एट 50 XYZ लेन, सिविल लाइंस, नागपुर।
I live at 20, he lives at 21 CA Road, Nagpur. My office is at 49 Tilak Nagar. Means that when the house address, when the address is said with the help of this plot number or house number or office number, then that becomes a point. तो ये at आ जाता है तभी. तो in और at में कई बार जो कंफ्यूजन होता है, उसके लिए मैंने जो कॉमनली मेड मिस्टेक्स है उसके लिए मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं. देन अगेन व्हाइल ट्रैवलिंग 2 पॉइंट्स अगर है, ये मैंने बताया था आपको, फ्रॉम नागपुर टू मुंबई, ट्रेन रन्स फ्रॉम पुणे टू दिल्ली. तो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे. ओके, एक और चीज है जो फ्रॉम का इस्तेमाल, ये पॉइंट देखते देखते मेरे ध्यान में आ रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आई नो हिम फ्रॉम 2010. ग्रामर में कैसा होता है, देखिए 2 चीजें हैं. एक है करेक्ट ग्रामर, चलता है या नहीं चलता है, और दूसरा है अप्रोप्रिएट ग्रामर. अब अप्रोप्रिएटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर. So which is more appropriate? When you say that I know him from, it is not so appropriate. When you say it is since I know him since 2010. So since is more appropriate. For from जो है लोग बोलते हैं कई बार, लेकिन ये ऐसे सेशंस का मतलब ही क्या है अगर आपको एग्जैक्ट और परफेक्ट चीजें ना पता चले तो. तो आई नो हिम सिंस 2010 मीन्स 2010 से मैं उनको जानता हूँ, अभी भी जानता हूँ, अभी भूल नहीं गया. दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस 2015. 2015 से वो ये ब्रिज बना रहे हैं और अभी भी बनाना चालू है. बहुत बड़ा काम चालू है अभी भी. तो सिंस ऐसे में द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. बच्चा रो रहा है सुबह से, अभी भी रो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. तो फ्रॉम का इस्तेमाल कॉमनली बहुत बच्चे यहाँ पे करने लगते हैं, बड़े भी करते हैं, ऐसा नहीं है. बट देन आप स्पेसिफिकली आगे से कम आप मत कीजिए. तो ये फ्रॉम का एक और पॉइंट मुझे जो ध्यान आया. टाइम के बारे में आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि लेक्चर इज फ्रॉम इतने बजे टू इतने बजे. स्टडी फ्रॉम और टू 2 चीजें जहाँ है कि देयर आर 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे वो जगह के बारे में हो, एक एंडिंग पॉइंट है. समय के बारे में भी वैसा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है. तो फ्रॉम और टू जो है कॉमनली यूज होता है. नाउ ये जो चीज है इनटू का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. इनटू शोज मोशन. ही जंप्ड इनटू द पूल. पूल में जंप किया है उन्होंने, मोशन है. ओके, टी वॉज बींग पोर्ड इन टू द कप. कप में डाला जा रहा था. देर इज मोशन, देर इज मूवमेंट. ओके, तो एक आपको थोड़ा मैं पीछे ये स्लाइड पे ले जाती हूँ जो आपको इसमें से ज्यादातर चीजें जो है हम कवर किए हैं. मैक्सिमम जो हर एक प्रेपोजिशन को सेपरेटली मैंने यूज किया है, आपको उसका यूसेज बताया है, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल जो है वो होता है. ये ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रेपोजिशंस हैं, और हैं, पर कॉमनली यूज्ड जो प्रेपोजिशंस हैं, और मेजरली फोकस मैंने ज्यादा उन प्रेपोजिशंस पे किया है जहां गलतियां ज्यादा आप लोग करते हैं, जो हम सालों से पढ़ाते हुए हमारे टीचर्स का ये जो ऑब्जर्वेशन रहा है. ठीक है, जैसे आप फ्रेज प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल नॉर्मली कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है, जो आप लोग अभी इस सिचुएशन में थ्रू एंड थ्रू इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़े हैं वो कर सकते हैं. लेकिन सिंपल सेंटेंसेस जो बच्चे बनाते हैं वो सिंपल और कॉम्पाउंड प्रेपोजिशंस का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. ओके, तो अगेन आई क्विकली रिपीट दिस सो दैट कुछ अगर मिस हो गया था, आप मेंटली थोड़ा कहीं ऑफ हो गए थे, तो आप फिर से ध्यान दे सकते हो कि एट फॉर जगह के लिए भी पॉइंट बताना या टाइम के लिए भी पॉइंट बताना. तो एट जैसे एट 6 AM, एट 7:30 PM, इस तरह से, या फिर एट द डोर, एट द गेट,
इस प्रकार से एट का इस्तेमाल, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताना, एक ही जगह का आप के बारे में बोल रहे हो, आप ही का घर, तो कभी आप घर के लिए इन बोल देते हो, कभी कॉलोनी के लिए इन बोल देते हो, लेकिन घर के साथ जब प्लॉट नंबर बोलते हो तो एट बोलना पड़ता है आपको। तो ये चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत सुलझे हुए दिमाग से इसको रिपीट करते रहना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, तो यू विल बी एबल टू मास्टर दिस। ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग इतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं कि हमको बैठ के उसको रोज उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, या फिर देख रूल्स नहीं खोलने पड़ते हैं। मेरे पास आज की डेट में एक भी बुक नहीं है, अचानक लॉकडाउन हो गया, कॉलेज में सारी बुक्स रह गई, तो वी आर एट होम, लेकिन कोई रूल बुक देखना नहीं पड़ रहा है, ये सब दिमाग में है, तो वो आपको फीड करना है उस ढंग से। बाय अगेन, उसके 2-3 सेंस मैंने आपको बताए हैं कि दिस हैज बीन डन बाय हिम, है ना, ये एक सेंस है पैसिव वॉइस में यूज करने का उसको, सेंटेंस को। दूसरा है कि बाय, आई विल रीच बाय 5 PM, आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय 6 PM। ऐसे आप जब एक अंदाजन एक लगभग वाला टाइम बताते हो, आसपास वाला 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाय। एट जैसे आपको बताया कि पॉइंट एकदम डॉट टाइम बताना पड़ता है। फॉर मतलब के लिए, दिस इज फॉर यू, आई हैव डन दिस फॉर यू, आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। तो ऐसे देखिए, जैसे मेरे पास लिखे हुए एग्जाम्पल्स नहीं है, आपको दिख रहा है मैं स्पॉन्टेनियसली आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, तो आपको ऐसे एक एक वर्ड को लेके बैठना है और कई सेंटेंसेस ऐसे आपको बोलने हैं, प्रैक्टिस करना है। फ्रॉम, I have come from China, I have come from India, I have come from Bangladesh, ऐसे this is from me to you, एक ये और एग्जाम्पल जो मैंने बताया मेरे तरफ से आपको, है ना। इन फ्रॉम जो है और फ्रॉम टू के सेंस में भी यूज हो सकता है। इन जो है, इन द कार, आप अंदर जहां जो चीज के जा सकते हो, इन द कार, लेकिन ऑन द बाइक, ओके। तो एंटर जहां कर सकते हो वहां इन। ऑफ, सिंगल एफ, डबल एफ दोनों का मैंने आपको बताया, ओके। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मुझे खाना बनाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, मुझे सोने का शौक है, इस तरह से। आई एम स्केर्ड ऑफ गोइंग इन द डार्क, मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है, ये ऑफ का इस्तेमाल सिंगल एफ वाला। डबल एफ वाला, स्विच ऑफ द लाउड म्यूजिक, बहुत जोर से म्यूजिक चल रहा है उसको बंद करो, है ना। पुश हिम ऑफ, उसको हटाओ यहाँ से धक्का मार के। आउट, बाहर। थ्रू मैंने बताया पूरा, द बर्ड फ्लू थ्रू द विंडो, पूरा विंडो के आर पार जाके जो है बर्ड निकल गया, बिल्कुल। बुलेट का आपको एग्जांपल दिया। इनटू द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर जाके रह गया, आर पार निकल गया पीछे से, तो थ्रू बोलेंगे। टिल, तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। टिल आई विल बी स्लीपिंग टिल 7 AM, आई विल बी वर्किंग टिल 5 PM। टू, अगेन फ्रॉम और टू, दो चीज जब रहे, दो पॉइंट्स जब रहे, तो टू का इस्तेमाल इस तरह से, ठीक है। एक और चीज है जो अक्रॉस आपने लिया है, अबव लिया है। ओवर एक छूट गया बोलने का। ओवर मतलब उसके ऊपर, जैसे वॉल है समझ लीजिए, एक वॉल है, ऐसी दीवार है, तो वो दीवार के ऊपर यहाँ कूद के चोर बैठा, ठीक है। तो द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल, ऐसे पार किया उसको, ठीक है। और दीवार के बीच में गैप है, उसके बीच में से पास हो गया, तो ही वेंट अक्रॉस द वॉल। तभी रूम के एक साइड से दूसरे साइड तक गया, ही वेंट अक्रॉस द रूम, ठीक है। अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के दिशा में ही वो चलने लगा। अमंग आपको बताया, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, ये सब बताया। तो ये मेजर, एक और चीज अगेंस्ट, यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस लिए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द प्रपोजिशंस बिकॉज बहुत हैं, और इतने सारे लेने से वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दिस इज अनदर वन। अगेंस्ट जैसे, यस, फुल सरफेस से टिक के अगर कोई चीज रहे अगेंस्ट, तो ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ऐसे पीछे दीवार थी उससे पूरा टेक के था, तो ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तब होगा, ओके।
एक कोई बहुत बड़ा ऐसा प्लाई का टुकड़ा कोई ला रहा है, तो आप उसको बोलते हो दीवार से टिका के रखो, तो प्लीज कीप द शीट ऑफ प्लाई अगेंस्ट द वॉल, ओके, ऐसे। तो ये अगेंस्ट का एक यूज है। स्ट्रेट जो सरफेस है, सरफेस टू सरफेस जो है उसका टचिंग जब उस ढंग से होता है तो वो हम बोल सकते हैं कि इट इज अगेंस्ट वर्ड इज टू बी यूज्ड। तो ये मेजरली कवर होने वाले सारे प्रपोजिशंस जो है वो मैंने लिए हैं। आई विश इट वर एन इंटरेक्टिव सेशन, तो मैं आपके क्वेश्चंस पूछी रहती और आपके कौन से डाउट्स हैं वो मैं क्लियर की रहती अगर क्वेश्चंस होते तो। कैन वी टेक एनी क्वेश्चंस मीनाक्षी? Ma'am, I think it is hardly possible because it Not is- possible, no? Acha, okay. So I think that's all from my side. I was in a hurry to complete. I was scared कि मैं पूरा दोनों topics जो है वो cover कर पाऊंगी कि नहीं, तो I managed because both the topics were equally important, but then somehow prepositions में ज्यादा points आते हैं तो उसको cover करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा time चाहिए था। So I decided that I'll give little bit more time to prepositions, and accordingly, I think we are almost through. So again, once again, I would like to thank all the organizers for having me here in this virtual platform and allowing me to speak to so many students. And hats off to the painstaking efforts that you've been taking in these challenging times. So good job, great job by all of you. That's all from my side. Thank you. Meenakshi, you can go ahead. Thank you very much, Shubhashri Madam. You explained the articles with phonetic model, which was very innovative. Also, you explained the preposition on the grounds of practical application with numerous examples, which was really very interesting to the students. Your lecture was indeed very flexible and approachable to students' mindset, as each and every point was explained in a very simplified way. Of course, the method of teaching grammar varies from person to person, but the method you applied to guide the students with your logistics created an impression of functional grammar that basically focuses language as a system of meaning rather than language as a set of rules. Thank you very much, ma'am. It was really a wonderful lecture. Thank you so much. On behalf of all the three colleges, I express my thanks for organizing the BCom Semester 2 Compulsory English Online Program. So with this note, meet you on Monday sharply at 11 a.m. with a new upcoming lectures. Till then, be safe and have a good day. Thank you once again, madam. Thank you. Thanks all of you. Thanks, Manju.